the first thing we do is we go to powerapps.microsoft.com. Please remember, for starting the Power Apps, we go to powerapps.microsoft.com and then sign in with the same account. When you click on the sign in, you will be signing in with this same account, SBBU Nawab Shah. Okay, that is the account that I've, so for 14 days, this would not ask us. So I'm saying ask later. Okay, now we are in the Power App. Can anyone tell me? Okay, right. I'm unchecking this and skipping this and then going there. Can anyone remember what should I do now? Please type in the chat. How do I create the Power App? Type your response in the chat. I want to see the response in everyone chat. How should I create the application? What should I do? Shifa can't hear me. Yeah, what should I do to create the Power App? Click on the create, Shiraz. Yes, you're right. So we'll have to create on the create on button. the create, sir. Yeah, click on the create. You're right. So we have to click on the create. And then what should I do? Tell me, yes, unmute yourself and tell me, what should I do? Where should I go? Sir, click on the blank app. Yeah, blank app. And then now, where should I go? First one, sir. Yeah, first one. Okay, create. Now, now you will name it. For example, I'm naming it Aslam first app. Okay, and maybe putting in today's date, 12/03, and letting this select template one. Now, and I'm selecting Australia and saying, okay, get ready. And skipping it. Now this gives me the first app canvas. What is this? This is the canvas area for designing my app. All right. Okay. You remember last time, what did we do? We placed some labels and we placed some, the text boxes and other things. But today I'm starting the SharePoint and we are storing the data in the SharePoint. You remember we last time we discussed about the SharePoint. SharePoint is a tool where we store the data for our applications. What is SharePoint? SharePoint is a tool. Can you all see my screen? What I'm writing here? Yes, SharePoint. Okay, SharePoint is a backend, or SharePoint is used for storing the, oh, my spelling got bad. Storing the backend data, backend app data. Okay, SharePoint is a tool used for storing the backend data. You know what backend data? What is backend data? What is backend data? For example, we are saying, for example, context list. Okay, so we are creating a context list. What does context list contain? It will contain the title, it will contain the name, and it will contain the email. Okay, so we are creating a context list of people and we are storing in the SharePoint. How do we work with the SharePoint? I will create a SharePoint site for you and we all will be using that SharePoint. All right. So I'm going to Power Apps. Okay, I'm going to create the SharePoint app for us, and then we'll be using that one. Okay, so let me create a SharePoint site.
you don't have to worry about this. This is one off thing. So ये एक दफा का काम है. मैं क्या करूंगा कि मैं एक शेयर पॉइंट साइट बना के और आप सब लोगों से शेयर कर दूंगा. ठीक है, जब आप सब लोगों से शेयर कर दूंगा तो वो हम उस साइट को हम आइंदा के लिए अपने कामों में यूज करेंगे. तो हम उसको कह रहे हैं एक टीम साइट बना रहे हैं और उस टीम साइट का नाम क्या रख रहे हैं? हम कह रहे हैं SPBU database. ओके, उसका नाम हम रख रहे हैं SPBU database और हम उसको जो है वो ओनर किसको बना रहे हैं? SPBU नवाब शाह को. ठीक है, उसको हमने ओनर बना दिया और उसको हमने आगे ऐसे क्रिएट करके छोड़ दिया. और इसका लिंक जो है ना मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा. तो जैसे ही हमारी ये साइट डेवलप हो जाती है तो हम उसको SPBU database को यूज करेंगे. ऑलराइट, ये हमारी SPBU database साइट बन गई और ये उसका जो है वो हाइड दिस कंट्रोल और ये हमारी SPBU database साइट है. और हम ये यहाँ पर जहां पर हम अपना पावर ऐप बना रहे थे वहां हम उसको ले जाते हैं और उसको ओपन करते हैं. ये so don't worry about it, you just have to remember this site address. ठीक है, ये this is the SPB database साइट. हम SPB नवाब शाह को हमने ये एक्सेस दिया हुआ है और हमारा पासवर्ड ये यहाँ पर पड़ा हुआ है. Okay, so you guys are getting this problem because you did not collect the tick on the ask later, most likely, isn't it? एक प्रॉब्लम हो सकती है कि आपने इसको अकाउंट दिया, ठीक है, उसके बाद उसने आपको बोला कि ये आस्क लेटर आपने हो सकता है क्लिक ना किया हो. अगर आप आस्क लेटर ना करेंगे ना तो फिर आपको एरर आएगा. एवरीवन प्लीज office.com पे जाएं और अपना यूजर नेम डालें और उसके बाद ये आस्क लेटर जो है ना उसको 14 डेज के लिए आप उसको ऑफ करें तो फिर यू कैन सी दिस थिंग. ये है वो शेयर पॉइंट की साइट जो हमने क्रिएट की थी. अच्छा, जैसे ही ये आप ओपन करेंगे, क्लिक करेंगे तो ये ऐसे ओपन हो जाएगी. उसमें हम साइट कंटेंट्स में जाएंगे, मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है और हमें पता है साइट कंटेंट्स में जाएंगे और यहाँ पर न्यू करके एक लिस्ट बनाएंगे. लिस्ट क्या है? जैसे हमारा एक्सेल होता है उस तरह की एक लिस्ट. और लिस्ट में हम एक ब्लैंक लिस्ट बनाएंगे और उसका नाम रखेंगे SPBU कॉन्टेक्ट्स लिस्ट. ठीक है, अच्छा, SPBU कॉन्टेक्ट्स लिस्ट में हम क्या बनाएंगे? हम 3 कॉलम बनाएंगे. लिस्ट क्या होती है? कॉलम्स की एक कॉम्बिनेशन होती है. तो पहला कॉलम जो ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्रिएट होता है वो होता है टाइटल, उसको हम रहने देते हैं. दूसरा कॉलम हमने ऐड कॉलम क्लिक किया, फिर टेक्स्ट क्लिक किया, फिर नेक्स्ट करके हमने कहा कि इस कॉलम का नाम है नेम. ठीक है, और तीसरा कॉलम जो हमने यहाँ पर क्रिएट किया उसको हम करेंगे, उसका हम नाम देंगे ऐड कॉलम करके. उसका क्या नाम देंगे? टेक्स्ट टाइप का. नेक्स्ट करके उसका हम नाम देंगे ईमेल. तो अब हम ये देखें, ईमेल इस कॉलम का नाम है. उसकी टाइप क्या है? सिंगल लाइन ऑफ द टेक्स्ट. और वैल्यू हम उसको कोई नहीं दे रहे हैं और सेव कर रहे हैं. अब आप देखें हमारे लिस्ट का नाम क्या है? हमारे लिस्ट का नाम ये देख रहे हैं. प्लीज अनम्यूट करके मुझे 1-2 बंदे बताएं कि इसका लिस्ट का नाम क्या है? सबू कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट. ठीक है, और इसमें कितने कॉलम हैं प्लीज बताएं? एक सर, 3 कॉलम. 3 कॉलम, टाइटल, नेम 3. और ईमेल. ठीक है, अच्छा, बस ये हमारी लिस्ट है और इसको हमने ऐसे कॉपी करके मैंने पहले ही दे दिया. चलो अब हम शेयर पॉइंट में आते हैं. शेयर पॉइंट में हमारा ये जो कैनवस है इस वक्त एम्प्टी है. ठीक है, एक बात याद रखें, जब हमारे पास बैक एंड में शेयर पॉइंट होती है ना, फ्रंट एंड में क्या है हमारे पास? अच्छा, अब देखो हम इसको करते हैं. इसमें हम देखते हैं
कि फ्रंट एंड में हमारे पास क्या है, ये है हमारा फ्रंट एंड, ठीक है, ये है हमारा बैक एंड, ठीक है, और ये है हमारा उसका कनेक्शन। एक रास्ते का कनेक्शन ये है और दूसरे रास्ते का कनेक्शन ये हुआ, ये है। फ्रंट एंड में हमारा क्या है, देखें, फ्रंट एंड में हमारी यानी यूजर किस चीज को फेस कर रहा है, उसका नाम, उस एप्लीकेशन का नाम क्या है, वो है पावर ऐप, है ना। और हमारा डाटा कहाँ पड़ा हुआ है, जहां से ये पावर ऐप डाटा उठाएगी, ठीक है, उसका नाम क्या है, कहाँ रखा है, अनम्यूट करके बताओ जरा एक दो लोग, अगर समझे हो आप तो। बैकएंड डाटा हमारा कहाँ पड़ा हुआ, बैकएंड बैकएंड में डाटा कहाँ रखा है, उसका नाम क्या है, क्या बताया मैंने, शेयर पॉइंट लिस्ट, शेयर पॉइंट ठीक है। और हमारे शेयर पॉइंट लिस्ट का नाम क्या है, SBBU कॉन्टेक्ट्स लिस्ट। तो ये ऐप जो हम बना रहे हैं, ये कॉन्टेक्ट्स कहां से उठाएगी, SBBU कॉन्टेक्ट्स लिस्ट से। चलो अब हम वापस जाते हैं अपने शेयर पॉइंट में और एक दो डाटा आइटम्स डालते हैं। अब मैंने न्यू किया और मैंने कहा असद, ठीक है, मिस्टर असद, ये मिस्टर है, ये असद है, और ये ईमेल मैंने कहा asad@idontknow.com, ठीक है, ये मैंने इनका कांटेक्ट रख लिया। चलें अब कुछ और पार्टिसिपेंट्स को भी देखते हैं, उनके जो है ना वो कांटेक्ट भी बना देते हैं। फॉर एग्जांपल हमने दूसरा कांटेक्ट असलम ले लिया, असलम को हमने कहा ये मिस्टर असलम है, ठीक है, और इनका नाम असलम है, इनका नाम aslam@idontknow.com, ठीक है, इनका ईमेल एड्रेस भी idontknow.com, कंपनी का नाम है I don't know, और ये यहां से ताल्लुक रखते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने तीसरा नाम, हमारे पार्टिसिपेंट्स में से ही कोई नाम ले लेते हैं। हमने एक आयशा उठाया और एक गुलाम हुसैन ले लिया, ठीक है, तो दो कॉन्टेक्ट्स और बना देते हैं हम, और हम कहते हैं भाई ये हमारा एक कॉन्टेक्ट है, उसका नाम है आयशा, ठीक है, सॉरी हमने मिस रखा, आयशा रखा, और Aisha@idontknow.com, ये आयशा का, ठीक है। एक और कांटेक्ट हमने रखा, उसका नाम रखा मिस्टर और गुलाम हुसैन, और उनका नाम भी GH@idontknow.com कर दिया, ठीक है। तो अब हमारे कॉन्टेक्ट्स में कितने लोग हैं, प्लीज अनम्यूट करके बोलें। 4 सर, चार, 4 है, ठीक है। अच्छा अब हम पावर ऐप में गए, आपको पता है पावर ऐप में कुछ ब्यूटिफिकेशन के लिए हम क्या कहते हैं, चले हम एक लेबल एंटर करते हैं, याद है हमने लास्ट टाइम लेबल बनाया था, मगर इस दफा हम अपनी ऐप को लेबल को थोड़ा ब्यूटीफुल करके लिखते हैं। हमने कहा भाई ये लेबल है और ये पूरी स्क्रीन पे आएगा, और इसमें हम नाम लिखेंगे SBBU और कॉन्टेक्ट्स लिस्ट, ठीक है, इसको हमने सेंट्रलाइज्ड कर दिया, तो ये सेंट्रलाइज हो गया। यहां से हमने जाके इसको अलाइन सेंटर किया तो सेंटर हो गया, यहां से हमने थोड़ा इसका फॉन्ट साइज 20 कर दिया तो फॉन्ट साइज भी बड़ा हो गया। यहां जाके हमने इसको सेलेक्ट किया पहले, फिर यहां जाके इसका फिल प्रॉपर्टी, यू रिमेंबर लास्ट टाइम वी डिड दिस थिंग, और इसको हमने कहा कि भाई तुम ब्लू हो जाओ, ठीक है, तो कलर इसका क्या है, ब्लू, तो ब्लू थोड़ा ज्यादा हो गया तो हम उसको लाइट ब्लू कहते हैं, ठीक है, थोड़ा अट्रैक्टिव भी हो। और उसको हमने फिर इसको जाके फॉन्ट को हमने थोड़ा जो है वो नॉर्मल से हटाकर थोड़ा सा बोल्ड कर दिया, ठीक है। तो अब ये हमारी लिस्ट हो गई। अच्छा स्क्रीन का मैंने याद है ना, ये हमारे क्या है, ये GUI कंपोनेंट्स है, ठीक है। तो इस हमेशा GUI कंपोनेंट्स के नाम जो है ना वो अंडरस्टैंडेबल रखने चाहिए। स्क्रीन का मैं हमेशा कहता हूं कि उसका पहला जो वर्ड है वो SCR होना चाहिए, इसका मतलब है स्क्रीन, और उसके बाद हमने कहा मेन, यानी ये हमारी मेन स्क्रीन है, ठीक है, ये जो हमारी है वो मेन स्क्रीन है। और ये जो लेबल है इसको भी मैं रीनेम कर रहा हूं, और इसका पहला नाम मैं चाहूंगा कि LBL हो, और LBL के बाद मैंने इसको कहा कि ये हमारा हेडर लेबल है। सही है ना, समझ में आ गया? अनम्यूट करो कोई एक दो और कहो यस और नो। यस सर, यस सर। ओके कूल कूल, और लोग भी बोलो, ये इस एक जैसी आवाज आ रही है हमेशा, दूसरे लोग भी, दो चार और लोग बोलो जरा मैं देखूं। यस सर, समझ आ रहा है। ओके सब बोलो, दो चार लोग बोलो यस नो बोलो। यस सर। यस सर, ओके और Yes, sir. गुड गुड। चले अब हमारे पास हम
आपको पता है हम जो शेयर पॉइंट से कनेक्ट करके ये छोटी सी मैंने एक बेकार किस्म की इमेज जो बनाई थी उसमें हमने पावर ऐप क्या है, पावर ऐप मैंने क्या कहा था, क्या है पावर ऐप, पावर ऐप जो है वो फ्रंट एंड है, ठीक है। और ये जो हमारा ये मैंने बताया था ये क्या है हमारा, ये हमारा बैकएंड। बैक एंड है, ठीक है। बीच में हम कनेक्ट यूजर को क्या दिखाएंगे, अगर हम यूजर की तस्वीर बनाए तो यूजर की तस्वीर कुछ इस तरह से बनेगी कि मैं कहता हूं कि भाई यूजर इस तरह होता है, ठीक है। इसको हमने फिर टिक किया और ये यूजर है हमारा, ओके, ठीक है। और ये हमारा यूजर है, ठीक है। और ये कहाँ खड़ा है, ये हमारा यहाँ खड़ा है, ठीक है। इसको देख रहा है, इसको तो यूजर नहीं देखता ना। यूजर इंटरेक्ट किस तरह करता है, यहाँ से, यहाँ पर क्या पड़े होते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे बटन पड़े होते हैं, कुछ हमारे रेडियो बॉक्सेस पड़े होते हैं, है ना, और कुछ टेक्स्ट बॉक्सेस पड़े हुए होते हैं और इस तरह की चीज बनी हुई होती है। ये तो ऐप है ना हमारे सामने, और ये कनेक्ट करती है किसके साथ, शेयर पॉइंट लिस्ट के साथ। और वहां सॉरी बोले बोले ये बैकएंड के साथ सर करती है। अच्छा, बैकएंड पे कौन से ऑपरेशन करती है, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है ना। हम इसको आपने सुना होगा क्रेड ऑपरेशन करते हैं, ठीक है। यानी आपको डाटा क्रिएट करने का काम करती है ये बैकएंड पे। बैकएंड पे कौन से ऑपरेशन अप्लाई करता है यूजर इस ऐप के जरिए, क्रिएट करने के लिए, डिलीट या रिमूव करने के लिए, ठीक है, ऐड करने के लिए या क्रिएट हो गया, और एडिट करने के लिए ये काम होता है। तो हम इस ऐप में क्या करेंगे आज की ऐप में, कि इसी ऐप को हम यूज करके और अपना डाटा इसके साथ यूज करेंगे और कनेक्ट करेंगे। याद है कुछ लोगों ने लास्ट टाइम जो ऐप बनाई थी उन्होंने मुझे अपनी वो ऐप मोबाइल पे भी दिखाई थी, तो जो ये ऑपरेशन हम करेंगे वो मोबाइल पे भी नजर आएंगे। चले, अब पहली स्टेप जो है अपनी डाटा को इस कॉन्टेक्ट लिस्ट में दिखाने के लिए, चलो इसको हम जो है ना और भी इजी लिख देते हैं कि भाई ये जो है ना हमारा, ये क्या है, कॉन्टेक्ट लिस्ट व्यू है, ठीक है। तो व्यू करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इंसर्ट में जाके आपने एक गैलरी बनानी पड़ती है, ठीक है। ये गैलरी आपने देखा, मैं फिर से करूं, गौर से देखना, ठीक है, कि मैंने क्या किया। हमने इसको इंसर्ट में गए और वर्टिकल गैलरी को क्लिक कर लिया, ठीक है। वर्टिकल गैलरी को क्लिक करने के बाद इसको ठीक तरह से एडजस्ट करके और ऐसे ड्रैग करके रख दिया। अब देखो, अब हमने इसको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेज क्या है, हमने रख तो दिया ये, मगर ये हमारे शेयर पॉइंट के डाटा के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो हमें पहले तो शेयर पॉइंट को कनेक्ट करना पड़ेगा अपनी पावर ऐप के साथ। वो कैसे करते हैं, ये आइकॉन सब देख रहे हैं, ठीक है, देख रहे हैं ना, एक दो लोग बताएं। यस सर। यस। ओके, तो Yes. इसमें ये क्या कह रहा है, देखिए पढ़ो बताओ। डेटा। डेटा। अब हम यहाँ पर जाके हम कहेंगे भाई ऐड डाटा करो, और उसमें इसको क्लिक करेंगे ऐड डाटा। तो ये बताएगा हमें कि भाई कहाँ से लाऊं डाटा। तो हम बोलेंगे कि भाई डाटा जो है ना वो आप शेयर पॉइंट से लाओ, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं पर हमारा शेयर पॉइंट भी पड़ा होगा, ये रहा शेयर पॉइंट, देखा आपने। तो हमने, अब ये कह रहा है अच्छा शेयर पॉइंट तो लाऊं मगर कहाँ से लाऊं, तो हमने कहा भाई शेयर पॉइंट जो है ना वो यहाँ से कहीं से ले आओ, क्लाउड में ही पड़ा हुआ है, ठीक है। सॉरी, ये एक दफा फिर गायब हो गया। तो हमने इसको कहा कि भाई आप शेयर पॉइंट से डेटा ले आओ, ठीक है, और इसको समहाउ ये थोड़ा तंग कर रहा है, इसको मैंने कहा कनेक्ट करो। जैसे ही मैंने इसको कनेक्ट करो कहा तो इसने कहा मैं कहाँ से कनेक्ट करूं। तो हमने ये वाला पार्ट यहाँ से कॉपी करना है, इसको बोलना है कि भाई यहाँ से कनेक्ट करो, हमारे पास हमने तुम्हें बताया ना डेटा हमारा पड़ा हुआ है, कहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ पर, तो बस आपने कनेक्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से 3 चीजें पड़ी हुई हैं। अच्छा, किसी और ने भी बना ली यहाँ पर, है ना, एक मैंने बनाई थी और किसी और ने एक बना दी। हाँ अच्छा, तो वो जो किसी और ने बनाई है उसका नाम है कॉन्टैक्ट लिस्ट, और जो मैंने बनाई है उसका नाम है कॉन्टेक्स्ट लिस्ट। तो मैं अपनी वाली पिक कर रहा हूं, सही है, और ये मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो अब ये कनेक्ट हो रही है इसके साथ। अच्छा, अब हम इसको जो है ना वो कनेक्ट होने के बाद हमने कहा जैसे ही हमने कनेक्ट किया और इसको थोड़ा ऊपर नीचे किया तो ये हमारे पास ये नाम आ गए, मिस्टर असद, मिस्टर असलम, मिस आयशा और मिस्टर जी हुसैन। देखिए यही नाम हमने डाले थे ना।
अच्छा, थोड़ा गैलरी की सेटिंग्स को थोड़ा और ठीक करते हैं। हम कहते हैं हमें लेआउट में, ये लेआउट्स में जाके हम कहेंगे हमें लेआउट कौन सा चाहिए, ये वाला लेआउट। हम इसको कहते हैं हमें टाइटल, सबटाइटल और इमेज, और टाइटल, सबटाइटल और बॉडी, ये 3 वाला चाहिए। ठीक है, तो अब देखें जब जैसे ही मैंने ये 3 वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया तो हमें तीनों ऑप्शन आ गए, है ना। अब इसको प्ले कैसे करते हैं ऐप को, आपको याद है ना लास्ट टाइम, इसको बटन को क्लिक क्लिक करके प्ले करते हैं, है ना। क्लिक किया सर तो ये हमारी, सही है ना, ये हमारी एप्लीकेशन में जो है वो, यार इसको परमानेंटली कैसे हाइड करूं, कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो आप देखें ये जो है मेरे मेरे पास सारी डेटा कनेक्ट हो गई। सब यहां तक सबको समझ में आ गया। यस सर। अच्छा, अब देखो हम पब्लिश किस तरह करते हैं, कोई मुझे बताए पब्लिश किस तरह करते हैं। जरा जरा अनम्यूट करके कोई बताए जिसने लास्ट टाइम अटेंड किया था, मुझे बताओ कहाँ कैसे पब्लिश करूं। हेलो, कोई अवेलेबल है जो बता सके। सर मैं तो लास्ट टाइम था ही नहीं क्लास में। अच्छा, जो जो अवेलेबल है वो बता सकता है कोई। ओके, तो हम अपनी ऐप को सेव इस तरह करते हैं, ठीक है। और सेव करने का मतलब ये है कि सिर्फ ये मुझे नजर आएगी, ठीक है। और पब्लिश करने का मतलब ये है कि जिस जिस लोगों से, जिन जिन लोगों से मैं शेयर करूंगा, ये उनको भी नजर आएगी। तो मैं फिर इसको पब्लिश भी कर देता हूं और वो लोग अपनी ये इस ऐप को जो है वो, पहले ये सेव होने दें। हाँ, हो गई। तो अब ये पब्लिश हो गई और ये हमने इसको पब्लिश किया, तो अब ये मोबाइल डिवाइसेस पे भी आएगी। यहां तक बात समझ में आ गई। जी सर। अच्छा, अब एक और बात, लास्ट टाइम देखें मैंने आप लोगों को थोड़ा वेरिएबल भी सिखाए थे कि वेरिएबल किस तरह बनते हैं और किस तरह हम जो है ना वो एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन जाके डाटा को नेविगेट करते हैं। तो अब पता है मेरे लिए प्रॉब्लम क्या है, मेरे लिए प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही मैं ये इसको दबाऊं, प्रॉब्लम सुने पहले, प्रॉब्लम ये है कि मैं जैसे ही इसको दबाऊं तो मुझे कुछ इस तरह का